تو تھوڑا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا جنرل سا بتا دیں کہ میں نے بہت سی ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں اپلائی کیا تھا. اس کی سال میں 2 دفعہ اپلیکیشن اوپن ہوتی ہیں. ابھی سب سے پہلے آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کروانی ہے. جو انٹرویو ہوتا ہے آپ نے اسٹیپس میں جو نا ایک دو اوکے. کوشچن میرے ذہن میں آئے تھے کلیئر کر لیے. یہ نا میں نے کچھ گروپ لسٹ کی. میں یوزلی اسٹوڈنٹ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ایک اسکالرشپ پہ نا اپلائی کریں. آپ برلن میں برلن یونیورسٹی میں یہ اسکالرشپ گروپس کا آپ کو کافی فائدہ ہوگا. اس کی آپ پریپریشن کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی ٹپس آئی تھنک مجھے یاد آ رہا ہے. السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو براؤن وائبز اٹالیا. تو آج ہمارے ساتھ ہمارے احسن بھائی موجود ہیں جو کہ ماشاءاللہ اسکالرشپ پہ پاکستان سے یہ بیسیکلی اٹک سے ہیں اور وہاں سے یہ تھائی لینڈ گئے فل اسکالرشپ پہ، اور انہوں نے ایک دو اور بھی اسکالرشپس انہوں نے اچیو کی. ان کا ہم آپ کو فردر آگے جا کے بتائیں گے، لیکن آج میں نے ان کی ریکویسٹ کی. احمد بھائی کی یہ فرینڈ ہے تو میں نے کہا ذرا ہمیں تھوڑا ٹائم دیں اور بتائیں کہ اور بھی جو لوگ ہمارے بہن بھائی ہیں پاکستان سے جو اگر یورپ اور امریکہ کینیڈا یہ وہ ٹرائز کر کے رشیا نہیں لگ رہا تو تھائی لینڈ بھی ایک آپشن ہے. تو انہوں نے مجھے اس کی کچھ چیزیں بتائیں کہ بڑی اچھی ہیں، تو پھر میرا انٹرسٹ پیدا ہوا کہ میں نے کہا اور بھی لوگوں کی ہیلپ ہو سکتی ہے. تو آج احسن بھائی سے کہتے ہیں تھوڑا سا ہم انٹروڈکشن دے دیں اپنا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے اپلائی کرنا ہے، ابھی پاکستان میں ہوں، تو میرے لیے کیا کیا آپشن ہیں، کیسے میں اسٹارٹ کر سکتا ہوں. جی احسن بھائی. وعلیکم السلام آفاق بھائی. پہلے تو آپ کا شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. میرا نام احسن اقبال ہے اور میں بیسیکلی اٹک پاکستان سے ہوں. سن 2022 میں تھائی لینڈ میں آیا تھا اپنی انڈر گریجویٹ کرنے آن اسکالرشپ، اور ابھی میں ریسنٹلی گریجویٹ ہوا ہوں. میں نے پاکستان سے ICS کیا تھا جو کہ انٹرمیڈیٹ ان کمپیوٹر سائنس ہے، اینڈ دین میں نے تھائی لینڈ میں بیچلر آف سائنس ان مینجمنٹ ٹیکنالوجی کی ہے. صحیح صحیح ماشاء اللہ. تو آپ نے جو ہے نا کب ڈیسائیڈ کیا کہ میں تھائی لینڈ جاؤں، اور کیوں ڈیسائیڈ کیا اس کو؟ لائک اور بھی تو اتنی کنٹریز ہیں، تھائی لینڈ تو ایک کائنڈ آف کوئی بندہ اسٹڈی کے لیے جس کا ہونا وہ لائک سب سے پہلے یہ نہیں کہ میں تھائی لینڈ جانا چاہتا ہوں، موسٹلی ادر کنٹریز کی پرائورٹی ہوتی ہے. تو آپ نے تھائی لینڈ کو کیوں چوز کیا؟ اچھا، یہ کویشچن مجھ سے کافی زیادہ لوگ پتہ کرتے ہیں. جی جی سو لائک تھائی لینڈ کو پاکستان میں لوگ تھوڑا سا ڈفرینٹ نظریے سے دیکھتے ہیں، بٹ جو کہ بہت غلط ہے. جی جی تھائی لینڈ ایک بہت اچھا کنٹری ہے ایجوکیشن کے لحاظ سے. یہاں گورنمنٹ بہت اچھا فنڈ کرتی ہے یونیورسٹیز کو. ان کی جی جی. یونیورسٹیز بہت ٹاپ کلاس کی یونیورسٹیز ہیں. ایون لائک ان کی کچھ یونیورسٹیز پاکستان کی یونیورسٹی سے بھی بہتر ہیں. اچھا تو اچھا. میں نے ڈیسائیڈ ایسے کیا کہ میں جب انٹرمیڈیٹ میں نے فنش کی اور اس کے بعد میں نے پاکستان میں بیسیکلی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، اور دین ویسے ہی مجھے فیس بک پہ اسکرول کرتے کرتے مجھے کچھ اسکالرشپ کے گروپ کے بارے میں پتہ چلا. تو پھر میں نے اس طرح اسکالرشپ دیکھی، پھر میرا انٹرسٹ پیدا ہوا باہر جانے کا، تو میں نے اپلائی کرنا شروع کر دیا. میں نے کافی عرصہ اپلائی کیا اور اراؤنڈ لائک آفٹر 1 ایئرس مجھے یہ اسکالرشپ ملی. تو انیشلی تو میں نہیں آنا چاہ رہا تھا، پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اب جاؤں گا کیونکہ یہ اچھی اسکالرشپ تھی، ٹیوشن فی اور لیونگ ایکسپینسز کور کر رہا تھا. تو بعد میں مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ میں نے بہت اچھا ڈیسیجن لیا. جی جی اس وقت ماشاء اللہ. مجھے نہیں پتا تھا کہ تھائی لینڈ میں ایجوکیشن کا لیول اچھا ہوگا یا نہیں، بٹ یہاں آ کے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں کا لائک کوالٹی آف ایجوکیشن کافی بہتر ہے پاکستان سے. صحیح صحیح. اور اچھا اس سے پہلے کہ ہم پورٹل پہ جائیں اور ان کو بتائیں کہ کیسے آپ کہاں پہ کس ویب سائٹ پہ اکاؤنٹ وغیرہ بنا کے اپنے مطلب ٹرائی کر سکتے ہیں، تو تھوڑا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا جنرل سا بتا دیں کہ آپ کے پاس یہ ہونے چاہیے. باقی فردر آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ ایوری ڈاکومنٹ انکلوڈنگ CV یہ وہ موٹیویشن لیٹر ایوری تھنگ. ابھی تھوڑا سا بتا دیں لائک فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی میٹرک کی ڈگری انٹر کی ہونی چاہیے پھر آپ کر سکتے ہیں، بیچلرس کی ہونی چاہیے، کیا حساب کتاب ہے؟ اچھا، تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لیول پہ اپلائی کر رہے ہیں. اگر آپ انٹر کے بیچلر کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کے پاس میٹرک اور FSC کی ڈگری ہونی چاہیے، اور ایون دو آپ ٹرانسکرپٹ کی بیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ نے اپنا پاسپورٹ بنوانا ہے. باقی جو نارمل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو اسپیسیفک ایلیجیبلٹی ہوتی ہے جیسے GPA اور انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ یا IELTS، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی یونیورسٹی میں اپلائی کریں، کون سی گورنمنٹ اسکالرشپ میں اپلائی کریں، کیونکہ ہر یونیورسٹی اپنی ڈفرینٹ اسکالرشپ دیتی ہے. تو میں نے بہت سی ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں اپلائی کیا تھا. جی تو جی. ہر کسی کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو آپ کو وہ خود پہلے پڑھنا پڑے گا. یوزلی اگر آپ کے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں 70% پلس نمبر ہیں تو آپ یوزلی موسٹ اسکالرشپ اتنے ریکوائرڈ کرتی ہیں، بٹ کچھ بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی منیمم. صحیح. اچھا تھوڑا سا نا ہمارے ویورس کو آپ اسکرین شیئر کر کے بتا دیں کہ ابھی یہ جو بندہ پاکستان میں ٹرائی کرنا چاہتا ہے وہ دوسری کنٹریز کا بھی کر رہا ہے، تو ایز اے آپشن وہ بیک اپ آپشن، یا اگر پرائورٹی پہ بھی ہو، اس کو تھائی لینڈ ویسے ہی پسند ہے، ایشیا میں رہنا چاہتا ہے، تو اس کا تھوڑا ہمیں بتا دیں کہ کس ویب سائٹ پہ جا کے ہم
کیا کریں, تو کس طرح اس کی کوئی ڈیٹس وغیرہ ہیں, کیا حساب کتاب ہے, تو اسکرین شیئر کر کے بھی ہمیں بتا دیں اور ساتھ ساتھ ہمیں گائڈ کر اوکے دیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اپنا بتا. سو بھائی اسکرین ویزیبل ہے؟ ابھی آئی تھنک پروسیس, جی اب ہم آپ کی اسکرین دیکھ سکتے اوکے. ہیں. سو بیسیکلی میں جس اسکالرشپ پہ آیا تھا وہ یہ تھی تھامس ہارٹ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ریکروٹمنٹ پروگرام. تو اس کی سال میں 2 دفعہ اپلیکیشن اوپن ہوتی ہیں. ابھی اپلیکیشن کلوز ہوئی ہیں اور اس کا یہ انہوں نے اپلیکیشن پروسیس بھی دیا ہوا ہے. سب سے پہلے آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کروانی ہے اور آپ یہ اپلیکیشن فی بھی مانگتے ہیں جو کہ $30 ہے, وہ آپ نے پے کرنی ہے. اس کے بعد یہ آپ کا جو لسٹ بنائیں گے جن اسٹوڈنٹ سے یہ انٹرویو لینا چاہتے ہیں, اور ایگزامینیشن ہے ان کا آن لائن ایگزامینیشن بھی ہوتا ہے جو کہ ایزی ہوتا ہے, میتھس اور انگلش کی بیس پہ ہوتا ہے. پھر آپ کی جو اس پروگرام میں آپ اپلائی کیا وہ فیکلٹی آپ سے انٹرویو لیتی ہے اور پھر یہ نا سکسیزفل کینڈیڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں, لسٹ بناتے ہیں. اس اسکالرشپ میں بتاتا چلوں کہ آپ کیا بیچلر ماسٹر یا کسی پروگرام کے لیے بھی اپلائی کر رہے ہیں, آئلس مسٹ ہے مسٹ ہے. دس یونیورسٹی. صحیح ہے. جب میں نے اپلائی کیا تھا اس وقت نہیں تھا, ابھی انہوں نے کر دیا ہے. اور پہلے اپلیکیشن فی بھی نہیں تھی, ابھی انہوں نے اپلیکیشن فی بھی رکھ دی ہے کیونکہ ان کو کافی زیادہ اپلیکیشن ریسیو ہوتی ہیں. جی بٹ یہ ایک اسکالرشپ ہے. میں ابھی آپ کو دکھانا چاہوں گا بہت سارے یہاں رکیے گا اسکالرشپ. احسن بھائی, یہاں پہ مجھے تھوڑا بتائیے گا. اچھا پہلے سبمٹ اپلیکیشن میں آپ نے یہ وہیں اسی اسکرین میں جائیے گا نیچے ہی نا. جی تو یہ جو جی اسٹیپس ہیں اس میں اپلیکیشن سبمٹ کر دی, چلیں اس میں تو موسٹلی ہماری پرسنل انفارمیشن ہوگی, کیا کیا ہوا ہے, نیم وغیرہ, یہ وہ سارا کچھ چیزیں ہوں گی. جی جی سیکنڈ جو اسٹیپ ہے اس میں اناؤنسمنٹ آف ایلیجیبل کینڈیڈیٹس. ادھر جو انٹرویو ہوتا ہے آپ نے کہا میتھ اور انگلش بیس ہوتا ہے, اس کی تیاری کے لیے کوئی ہمیں وہ کچھ دیتے ہیں, کوئی اس پورٹل میں اگر کچھ مل جائے سم تھنگ. آگے بھی نیکسٹ بھی انٹرویو ہے جو کہ فیکلٹی لیتی ہے. آئی تھنک یہ 2 جو انٹرویوز ہیں کافی, آپ نے کہا کہ ایزی ہیں, کوئی بہت زیادہ ٹف نہیں ہے. موسٹلی تو آئی تھنک یہی پوچھیں گے جی وائی تھائی لینڈ, وائی دس یونیورسٹی, وہ جو بیسک سے ہیں سب کے. جی بالکل. اس کی اب تھوڑی سی تیاری پھر بھی اگر کوئی بندہ لائک مور پریپیئر اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی ادھر انہوں نے پورٹل پہ آپشن دیا ہوا ہے کچھ, کوئی آپ نوٹس وغیرہ کوئی اینی تھنگ. یوزلی نو. ایکچولی جو آپ کا یہ جو پہلا اسٹیپ 2 میں انٹرویو اور ایگزامینیشن ہوتا ہے جی یہ اونلی ہوتا ہے انڈر گریجویٹ کے لیے جو اپلائی کر رہے ہیں. اور ٹھیک ہے. اس میں جو ٹیسٹ ہوتا ہے بیسیکلی وہ میتھس اور انگلش کا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے میتھس پہلے نہیں پڑھی ہو, کچھ بچے پری میڈیکل کر کے آتے ہیں تو ان کو میتھس کا ٹیسٹ بھی دینا پڑے گا. تو میتھس کا ٹیسٹ اتنا مشکل نہیں ہوتا, بس وہی ٹریگنومیٹری الجبرا انہیں کی کوشچنز ہوتے ہیں, سمپل سے ہوتے ہیں, اتنے مشکل نہیں ہوتے. جیومیٹری وغیرہ آ جاتی ہے جو صحیح آپ صحیح. نے میٹرک اور ایف ایس سی میں پڑھے ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے وہ پڑھا ہے تو آپ 100% ٹیسٹ کر لو گے. میں نے خود کیا تھا اور میں نے 100% کر لیا تھا. باقی جو انگلش ہے, انگلش کا ٹیسٹ بالکل بھی ٹف نہیں ہوتا. جسٹ وہ آپ کو پیراگراف دے دیتے ہیں اور پھر پیراگراف بیسیکلی ریڈنگ ہے, نہ لسننگ ہے نہ رائٹنگ ہے, جسٹ ریڈنگ ہے. تو ریڈنگ میں صحیح آپ نے صحیح. بس پیراگراف پڑھنے اور کوشچنس کے آنسر آنسر دینے کرنا. ہیں. تو یہ ایک جنیرک سا ٹیسٹ ہے, وہ بس چیک کرتے ہیں کہ کیا وہ بچہ ایلیجیبل ہے, پڑھ لے گا. زیادہ ٹف نہیں ہوتا, بٹ وہ آپ کو نا آپ سے اسکرین شیئر کرواتے ہیں اور آپ کی پراپر مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو چیٹنگ کا کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے اس میں. صحیح صحیح. اور تھوڑا بتائیے گا کہ ٹھیک ہے یہ ہو گئے دونوں جو ہے نا ٹیسٹ ہو گئے, اپلیکیشن فیس بھی ہم نے بھر دی, تو اس کی کوئی ڈیٹس وغیرہ کیا ہیں, کب کوئی سٹارٹ کرے, فار ایگزامپل ایئر کے مطلب کس منتھ میں سٹارٹ ہوتی ہے یا 2 ٹائمز ہوتی ہے, کب سے وہ سٹارٹ کرے اور ڈاکومنٹس اپنے وہ پریپیئر کر لے جو آگے ہم ان کو چیک لسٹ دے دیں گے. تو کب یہ شروع ہوتا ہے, فار ایگزامپل ابھی تو اگست چل رہا ہے 2026 ہے, تو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ کب اس کے لیے تیاری اپنی شروع کر سکتا ہے کہ وہ اس میں اپلائی کر دے. اچھا اچھا, میں یوزلی اسٹوڈنٹ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جیسے آپ گریجویٹ ہوں 8ویں مہینے میں, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹ آ گئے, آپ پریپیئر کرنا شروع کر دیں. اپنا پاسپورٹ بنوائیں, کالج سے ریکمنڈیشن لیٹر بنوائیں, انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ اپنا پریپیئر کریں. میں ریکمینڈ کروں گا کہ آئلس اتنا مشکل نہیں ہوتا, وہ دے دے. اور کچھ اور ٹیسٹ ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. تو یہ ٹیسٹ پریپیئر کریں. ان کا یوزلی جو ٹائم لائن ہوتی ہے, دسمبر میں پہلی دفعہ پورٹل فرسٹ راؤنڈ اوپن ہوتا ہے اور پھر مارچ میں دوسرا راؤنڈ اوپن ہوتا ہے. تو ان دونوں راؤنڈس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ فرسٹ میں صحیح کریں, صحیح. اگر نہیں ہوتا دوسرے میں کریں. ان کی سیٹس کافی لمیٹڈ ہوتی ہے, اراؤنڈ 100 سیٹس ہوتی ہیں فار آل دا پروگرامس, فار آل نیشنلٹیز. یہ یونیورسٹی کی ایک اسکالرشپ ہے. صحیح صحیح. چلیں اب آپ ہمیں بتا دیں جو کچھ آپ بتانے لگے تھے اوپر اسکرول کر کے, تو میں نے کہا اسٹیپس میں جو نا اوکے 1-2 کوشچن میرے ذہن میں آئے تھے کلیئر کر لیے, کیونکہ ویورس کے بھی وہ جب دیکھتے ہوتے ہیں نا, وہ ان کو ہوتا ہے کہ یہاں پہ میں نے یہ پوچھنا تھا, تو میں یہی ٹرائی کر رہا ہوتا ہوں کہ اگر میں ایز اے ویور دیکھ رہا ہوں تو کیا کوشچن ذہن میں آئے گا. باقی پھر بھی مس ہو جائے گا تو کوئی نہیں, کمنٹس میں پوچھ لیں گے. سو یو کین کنٹینیو. اوکے اوکے. سو میں اب یہ کچھ اپنی اسکرین شیئر کرتا ہوں. آپ کو نظر آ رہی ہے جی یہ اسکرین ابھی. اسکرین؟ یہ نا میں نے کچھ گروپ لسٹ کی ہیں جی جہاں سے آپ اسکالرشپ
देख सकते हैं। तो ये जो फेसबुक के ऊपर दो ग्रुप है, मैं हर स्टूडेंट को रिकमेंड करूंगा इनको ज्वाइन करें। ये एक पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग ग्रुप है और स्कॉलरशिप नेटवर्क, जहाँ एक हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, वो आपको गाइड करेंगे कि आपने स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है। और डेली अराउंड लाइक हंड्रेड्स ऑफ पोस्ट होती हैं स्कॉलरशिप के बारे में। ये जो दूसरे ग्रुप हैं, व्हाट्सएप एंड ग्रुप एंड वेबसाइट्स, ये बेसिकली ये व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं एंड वेबसाइट्स भी हैं। तो यहाँ आप ना डेली लाइक स्कॉलरशिप पोस्ट होती रहती हैं, और आप ना डेली ये आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। आप वहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप नहीं आई है। मैं आपको ब्राइट स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, और वहाँ से आप ना इनका ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जी जी वेट मैं यूजली स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ कि आप एक स्कॉलरशिप पे ना अप्लाई करें, आप मल्टीपल पोजीशन में अप्लाई करें। मैंने खुद अराउंड लाइक हंड्रेड ऑफ स्कॉलरशिप पोजीशन में अप्लाई किया था इस स्कॉलरशिप को हासिल करने से पहले। अच्छा, हम्म, ये देखें, ये एक है ना प्राइवेट स्कॉलरशिप नाम की वेबसाइट है, इनका आप इधर से व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये देखें, ये डेली स्कॉलरशिप अनाउंस करते हैं। आप यहाँ जाएं, आपको अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप चाहिए, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी आ रही। तो ये देखें, यहाँ ना डेली स्कॉलरशिप लिस्ट होती है बाय यूनिवर्सिटी। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। जैसे ये देखें, ताइवान में स्कॉलरशिप्स हैं, बर्लिन में TU बर्लिन यूनिवर्सिटी में ये स्कॉलरशिप। आप वहाँ जाएं, ये मेंशन करेंगे कि क्या क्या इनको डॉक्यूमेंट चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हर चीज़, ये देखिए इन्होंने फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी लिखे हुए हैं। जो मेजर स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स वो दे रहे हैं वो इन्होंने बताए हुए हैं। उसके बाद अ, ये देखिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ये सब इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। जी जी और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये भी मेंशन है, और डेडलाइन। और ये आपको सारे प्रोसेस एक्सप्लेन कर देते हैं। और लेट मी शो यू द व्हाट्सएप ग्रुप। तो मैंने तकरीबन काफी अरसे से स्कॉलरशिप के ग्रुप ज्वाइन करके देखे हैं। आपको नजर आ रहे हैं मेरे व्हाट्सएप पे? जी जी। मैंने हमेशा से इनको ज्वाइन करके रखता हूँ, ताकि कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आए तो मिस ना हो, मैं उनमें अप्लाई कर सकूँ। तो हम्म। तो इन ग्रुप्स का आपको काफी फायदा होगा। इनके मैंने नाम ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं, जी जी आप कैप्शन में भी डाल दीजिएगा। जी इनको जी मस्ट इंशाल्लाह। ज्वाइन करें जी। बिल्कुल जी, ये बहुत हेल्पफुल है। बाकी हम ये और भी ऑप्शंस अगर कोई एक्सप्लोर करना है, ज़ाहिर है जब कोई बंदा अप्लाई कर रहा होता है तो वो इसी मिशन में होता है एवरी डे। तो आप लोग ये कर सकते हैं। इसके अलावा हम अब दोबारा वापस अपनी थॉमस सेट जो थॉमस सेट यूनिवर्सिटी जो स्कॉलरशिप है उसी पे चलते हैं। अब समझ हमें रहा आप हूँ। थोड़ा सा हाँ जी डिटेल में बता दें कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, ठीक है, जो बंदा प्रिपेयर करे। फॉर एग्जांपल दिसंबर से पहले भी काफ़ी टाइम है, 2 3 4 मंथ आई थिंक। तो वो क्या क्या चीज़ें, मतलब फॉर एग्जांपल अगर पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, कोई आयल्स करना चाहता है, ठीक है, वो हो जाएगा। और आपने मेंशन किया इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है वो। और क्या क्या ऑप्शन है, टोटल एक थोड़ी गाइड जो आपने जो यूज़ की है ना वो हमें बता दें, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये ओके, चीज़ें। हाँ ठीक है। तो मैं ना इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हर स्कॉलरशिप की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, तो उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। बट मेजोरिटी ऑफ स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पासपोर्ट चाहिए। तो पासपोर्ट जल्द से जल्द बनवाएं, पासपोर्ट के बगैर आप नहीं अप्लाई कर सकते मेजोरिटी ऑफ द स्कॉलरशिप। डेफिनेटली। सेकंड चीज आपको ये चाहिए, आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, चाहे वो मैट अब बैचलर के लिए कर रहे हैं तो आपको मैट्रिक और इंटर, मास्टर्स के लिए आपको बैचलर के चाहिए, और फिर PhD के लिए आपको मास्टर्स के चाहिए। उसके बाद आपके रिकमेंडेशन लेटर बेसिकली आपको प्रोफेसर बना के देता है कि मैं इस बच्चे को रिकमेंड करना चाहता हूँ स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, ये काफी टैलेंटेड है। तो हम्म। मैंने एक चीज नोट की है, जो मेजोरिटी रिजेक्शन की वजह आती है हमारे पास, आपने जब रिकमेंडेशन लेटर बनवाया तो थोड़ा सा स्पेसिफिक बनाए, जेनेरिक ना बनवाए कि आपको प्रोफेसर ये बताया ये स्टूडेंट्स बहुत अच्छा है, ये नहीं, आप थोड़ा सा स्पेसिफिक बताएं कि ये किस तरह अच्छा है, इसने क्या काम किए। फर्स्ट करें क्लास में कोई प्रोजेक्ट किया है, या कुछ उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रही हैं, या वो क्लास में टॉप पे रहा है, तो वो उसके अंदर मेंशन करें। जेनेरिक नहीं सही है। होना चाहिए, सही है। थोड़ा सा स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है। तो वो बनवाएं, 2 से 3 प्रोफेसर्स के बनवा लें। उसके बाद आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। अच्छा, इसके फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बेस्ट ऑप्शन है आइल्स। आइल्स कर लें। इसकी टिप्स मैं आपको बाद में एट द एंड ऑफ बताऊंगा कि आप आइल्स की प्रिपरेशन कैसे करें। तो जी जी। आइल्स सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। अगर वो नहीं है तो अपने अपने कॉलेज से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवाएं, और वो चल जाते हैं। मेजोरिटी ऑफ द स्कॉलरशिप लाइक इन चाइना, ताइवान, थाईलैंड में बहुत सी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं, बट जिनके पास अब बहुत सी यूनिवर्सिटीज आइल्स को मैंडेटरी कर दी है, क्योंकि वो ना उनको बहुत ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव होती है, और वो फिल्टर आउट करना चाहते हैं किसी क्राइटेरिया के बेस पे। तो इस हम्म। वजह से उन्होंने आइल्स मैंडेटरी कर दी है। बट आइल्स स्टिल में बहुत सारे कंट्री। काफी इनका जो है ना क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट है, लाइक कितने बैंड होने चाहिए आइल्स में, मतलब यूजुअली अगर कोई बंदा करता है तो कितना मिनिमम उसका हो तो वो समय लेके हाँ ठीक है मैं अप्लाई अब कर देता हूँ इस स्कोर के साथ।
डिपेंड ऑन प्रोग्राम। मेरी यूनिवर्सिटी में 6 रिक्वायर्ड है, बट मैंने थाईलैंड में कुछ यूनिवर्सिटीज देखी हैं वो 3.5 भी रिक्वायर्ड करती हैं, 3.5 बैंड। जी तो एवं ही उन्होंने खींचा किया नहीं है। चलो बहरहाल तो 3.5 अच्छा सुन के लगा जो ना वो हौसला हुआ है कि ठीक है, अगर कोई बंदा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवाना है तो आइल्स भी कर सकता है, पैसे ही लगने हैं इतने को, तो मेरे ख्याल वो बट आइल्स वाले भी दे देते हैं कि चलो कोई बट ये नहीं। बहुत नॉर्मल सी यूनिवर्सिटीज हैं जो बहुत लो रैंक यूनिवर्सिटीज हैं, जी जी और उनकी स्कॉलरशिप प्रोग्राम इतने नहीं होते। जो जो स्कॉलरशिप ऑफर करती है ना, उनकी लाइक 5.5 to 6 रिक्वायरमेंट है। इस तरह कर 5.5 लेते आपका हैं कि मिनिमम होना चाहिए। एटलीस्ट 5.5 आपकी होनी चाहिए डेफिनेटली, जी क्योंकि अगर आपने स्कॉलरशिप अचीव करनी है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको शो करना पड़ेगा। तो वो तो चलें, वो बिल्कुल मैंने मजाक में वैसे गुजारे के लिए कह दिए, बाकी सही है, मिनिमम 5.5 होने चाहिए। ठीक है। बिल्कुल। और इसके अलावा और क्या चीज़ आती है इसमें डॉक्यूमेंट्स में कि इनफ है इतने इसके कंप्लीट हो गए? इसके अलावा ये बस यही डॉक्यूमेंट जो मोस्टली रिक्वायर्ड होते कोई हैं। इसके अलावा मोटिवेशन डिपेंड लेटर तो नहीं करते होता? हैं। हाँ, वो मेन चीज मोटिवेशन और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो तो मैं बताने ही भूल गया। जी जी। आई थिंक वो मेन चीज होती है जिसकी बेस पे वो स्कॉलरशिप डिसाइड करते हैं। तो उसमें बच्चे मोस्टली ये करते हैं कि चैट जीपीटी को अपना डेटा दे देते हैं, और ना कोई अपनी क्लियर इंटेंशन नहीं बताते। कि चैट जीपीटी आपको लिख देगा, बट वो ना बहुत जेनेरिक होता है, तो उसको बहुत स्पेसिफिक बनना है। आप इस प्रोग्राम में क्यों जाना चाहते हैं, कुछ अपना पर्सनल जो आपके लाइफ की इवेंट्स हैं उनसे लिंक करें। हम्म। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और आपके क्लियर फ्यूचर गोल्स बताएं उनको। और ठीक आपके है। जो इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं वो उसी बेस पे होते हैं, लेटर ऑफ मोटिवेशन के बेस पे होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कोई डेफिनेटली स्कॉलरशिप है तो ट्यूशन फीस कवर होगी आपने कहा है, और कोई फीस वगैरह नहीं होगी, और लिविंग एक्सपेंसेस भी कवर्ड होते हैं, कोई स्टाइपेंड वगैरह भी मिलता है? डिपेंड करता है। आप जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी में ये थॉमस हार्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट रिक्रूटमेंट प्रोग्राम, इसमें जो स्कॉलरशिप है वो 3 कैटेगरीज में आती है। इस दफा उन्होंने जब हम थे तब 3 कैटेगरीज में आती थी। हम्म। टाइप ए में होता था ट्यूशन फी प्लस 8,000 पार्ट, जो कि अराउंड 250 USD बनता है स्टाइपेंड। दूसरे में आता था ट्यूशन फी प्लस अराउंड 150 USD स्टाइपेंड। एंड देन हम्म। तीसरे में सिर्फ टाइप सी होता था जिसके अंदर ट्यूशन फी वेवियर होता था। बट अभी इन्होंने रिड्यूस करके सिर्फ टाइप 2 टाइप्स कर दिए, जिसमें ट्यूशन फी वेवियर है, और या ट्यूशन फी वेवियर प्लस अराउंड 200 USD स्टाइपेंड है, सही है सर, जो मैं कि इसलिए इनफ। आपसे जी जी इनफ होता है सिंगल बंदे के लिए, इसने रहना है, स्टूडेंट ने जाना है, तो आई थिंक सारा जो कुछ तो कवर्ड है, तो खाना भी नहीं करना है, बिल्कुल। कोई ज्यादा नहीं होगा। और मैं इसलिए पूछा कोई बैंक स्टेटमेंट वगैरह का चक्कर तो नहीं है ना, बस ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लें तो डेफिनेट स्कॉलरशिप में सारा कुछ कवर्ड है, तो बैंक स्टेटमेंट का वो इट डजेंट मेक सेंस कि उसके लिए चाहिए। या नो नो नो। और इसका आपको ठीक हो गया, ये सारी चीजें हमने प्रिपेयर कर ली, दिसंबर में ये पोर्टल में हम अकाउंट बना सकेंगे, लॉगिन कर सकेंगे। अभी मुझे एहसन भाई ने पहले बताया था कि इसको आप अभी नहीं ऐसे यूज कर सकते, और अभी मतलब इसमें ऑप्शन नहीं है अकाउंट वगैरह बनाने का, अदरवाइज हम आपको लॉगिन करके और अच्छे से बाकी तो आप चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई ये वो। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा ये है कि इसकी टाइमलाइन, दिसंबर में आपका पोर्टल ओपन हो गया, आपने अप्लाई कर दिया, तो आप फॉर एग्जाम्पल दिसंबर में आपने अप्लाई किया था, कब आप थाईलैंड जा सकेंगे, कितना टाइम लगता है, और फिर हम थोड़ा सा हमें बता देंगे इसकी एम्बेसी वगैरह कहाँ पे है, और कैसे कैसे जो है डॉक्यूमेंट इधर से सबमिट करके अगर क्या क्या प्रोसेस होगा कि आप थाईलैंड पहुंच जाएं। अच्छा, तो इनका यूजली दिसंबर में पोर्टल स्टार्ट होता है, ओपन होता है। आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे, 2-3 मंथ की प्रोसेसिंग होती है आपसे इंटरव्यू टेस्ट में, और फाइनल लिस्ट आपकी लगेगी अराउंड मार्च में फर्स्ट राउंड की लगती है, और मई में सेकंड राउंड की लगती है। ठीक है। इनका कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो अ, आपको कुछ भी नहीं करना, वो आपको डॉक्यूमेंट देंगे। आपने एम्बेसी जाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप इनका थाईलैंड का वीज़ा ऑनलाइन है, तो हम्म। आप ऑनलाइन वीजा अप्लाई करेंगे, वो आपको ऑनलाइन वीजा सेंड कर देंगे। आपको एम्बेसी जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आप बस टिकट बुक करें और आ जाए। और नाइस। ज्यादा डॉक्यूमेंट कुछ भी रिक्वायर नहीं होते, और आप आएंगे। इनका सेमेस्टर स्टार्ट होता है अराउंड मिड ऑफ जुलाई। हम्म। सही, तो विद इन 6 to 7 months में आप सारा प्रोसेस कर सकते हैं और उधर पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल। जी आप वीजा लिए, आप उधर पहुंच भी गए, तो नेक्स्ट आ जाता है स्टेप उधर की, आप थोड़ा हमें बताएं कि हॉस्टल्स कैसे हैं और क्या लिविंग एक्सपेंसेस आते हैं आपको उधर रहते हुए। अच्छा, तो डिपेंड करता है कि आप वहाँ रह रहे हैं। जैसे मैं बैंकॉक के थोड़ा सा सब अर्ब्स में रहता हूँ, थोड़ी हमें तो अपनी ये ये एरिया टैब थोड़ा आपने खोली हुई है थॉमस थॉमसरी यूनिवर्सिटी, ये भी दिखा देना हमें, साथ स्क्रीन शेयर तो हो रही है, आपने जो अपनी यूनिवर्सिटी में ओके। थोड़ी दिखा दें तो बंदे को आइडिया हो ओके, जाए। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी है, और ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। हम्म। माशाल्लाह इनका काफी बड़ा कैंपस है। आप कह सकते हैं कि एक सिटी ही है ये। नाइस। आपको अंदर सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, लाइक फ्रॉम हॉस्पिटल टू
हॉस्टल्स एवरीथिंग। तो तो आपको कोई अकोमोडेशन का इतना मसला नहीं होगा, जब स्कॉलरशिप मिल नहीं, गई तो इधर से आप बुक कर लेंगे यूनिवर्सिटी के साथ ही। आपको ना अकोमोडेशन जी, इनकी यूजली अकोमोडेशंस होती हैं नाइस। थमासाट की, काफ़ी अच्छी अकोमोडेशन है। हम्म। बाकी ये है कि अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो स्टार्ट होता है 1000 बाट से इनकी अकोमोडेशन, जो कि पाकिस्तानी 8000 बनते हैं, और उसमें आपको अच्छी अकोमोडेशन देते हैं, बट वो आपको नाइस। चार बंदों के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा, या आपको फिर आप थोड़ा सा लग्जरी की तरफ जाएंगे तो अराउंड पाकिस्तानी आपको 20 से 21 हजार, लाइक 24 हजार तक आपको रूम मिलेगा पर मंथ। और फिर अगर आप ना बाहर रहना चाहते हैं तो फिर आप लाइक 40,000 पाकिस्तानी रुपीज का पर मंथ आपको पड़ेगा सही रेंट। सही। तो शायद है फिर तो स्टूडेंट्स काइंड के ऑफ लिए most। प्राइवेट ही हो जाएगा ना सारा यूनिवर्सिटी का, तो जो बाहर आप रहेंगे तो अंदर सिस्टम उसका बिल्कुल। तो खत्म हो गया। सही सही। कॉस्ट ऑफ फूड की बात करें तो यहाँ इतना कुछ एक्सपेंसिव है नहीं, मतलब है, आप कैंटीन में खाते हैं तो अराउंड $1 पर मील आप कर दें तो चीप है, फूड क्वालिटी भी अच्छी होती है, तो आपका ठीक लाइक ठीक। अनएस्टिमेटेड बजट लाइक टू, अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हैं ऑन लाइक नॉट लग्जरी लाइफ सिंपल, तो मिनिमम। आप अराउंड, जी। या तो और आप लाइक $150 से $200 स्पेंड करेंगे पर मंथ। सही है। ठीक हो गया। और कोई हलाल ऑप्शंस भी होते हैं? हलाल होता है, थाईलैंड में काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, अराउंड 5%, तो आपको हलाल कैंटीन बैंकॉक की हर यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी। हमारी यूनिवर्सिटी में 3-4 हलाल कैंटीन्स हैं और हम्म। काफ़ी उनके अच्छा फूड होता है। मैं तो थाई खाने से यूज हो गया हूँ, तो आपको, बट आपको अपने कंट्री का खाना कम मिलेगा, स्पेसिफिक पाकिस्तानी फूड। डेफिनेटली जी जी, ऐसे ही है। ठीक हो गया जी। पहुंच गए, लिविंग एक्सपेंसेस भी हो गए 150 to $200। बाकी आप इसको जितना ऊपर ले जाएं डिपेंड करता है आप पे। तो इधर कोई ये सारा कुछ कर लिया, वीजा ले लिया, अकोमोडेशन भी सेट हो गई, यूनिवर्सिटी वगैरह शुरू हो गई, तो जॉब वगैरह का क्या हिसाब है? कोई साथ जॉब वगैरह कर सकते हैं? स्कॉलरशिप पे नो, आए हैं? सॉरी, मैं थोड़ा सा पहले मैं गलत बता गया। जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ आपके एक्सपेंसेस 150 से 200 आएंगे। अगर आप बैंकॉक में रहते हो तो आप एक्सपेंसेस, सिटी में रहते हो तो आपके एक्सपेंसेस डबल हो सकते हैं, अराउंड लाइक 400। फिर हम्म। वहाँ आपको यूनिवर्सिटीज उस हिसाब से पे भी करती हैं, अगर आपकी स्कॉलरशिप है तो। बाकी आप जॉब नहीं कर सकते, वीज़ा जब आप यहाँ आते हो आपने अपने ऊपर ही डिपेंड करना है। आप टीचिंग वगैरह कर सकते हो, ऑनलाइन ट्यूटरिंग वगैरह आप हम्म। ऑनलाइन जॉब कर सकते हो, बट आपको ऐसे अलाउड नहीं है। लेकिन कुछ जैसे हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह रूल्स को इतना नहीं करते होंगे, कुछ कुछ लोग जो कुछ छुप छुप के लाइक, जैसे मोस्टली होता है नहीं, कि बिल्कुल ऐसा नहीं। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मैं देखा नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर की वजह से आपको जॉब मिलती नहीं है यूजली। और ज्यादा मैंने किसी को नहीं देखा है, सही सही, थाई आना मतलब भी जो, जरूरी है, आई थिंक वो इतनी इजी भी नहीं है मैं हाँ इतना पढ़ने इजी में। भी नहीं है। हम्म। सही बट सही। आप, प्लस पॉइंट ये होता है कि जब आपकी डिग्री खत्म होगी तो आपको वन वन ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, उसके दौरान आप जॉब सर्च कर सकते हो, तो ये वैसे आपका अच्छी एक प्लस मार्केट पॉइंट है। है जॉब के लिए इधर बैंकॉक में, फॉर एग्जांपल मेन सिटी में, अगर आप कोई ट्राई वगैरह करते हो स्टडी के बाद, आपके पास मतलब आपने 1 ईयर 2 ईयर मास्टर्स कर लिया या ग्रेजुएशन कर ली, तो कोई अपॉर्चुनिटीज हैं? अच्छी लैंग्वेज भी आपको थोड़ी बहुत आ ही जाएगी आई थिंक 3-4 ईयर में, या एटलीस्ट 2 ईयर्स में। अगर आप लैंग्वेज सीख जाते हैं तो फिर तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बट अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती, जैसे कि मेरा केस है, मैंने लैंग्वेज नहीं सीखी, तो फिर अपॉर्चुनिटी काफ़ी लिमिटेड हो जाती है। आपको टीचिंग वगैरह की जॉब इजीली मिल जाती है स्कूल्स में, आप टीचिंग वगैरह कर सकते हो। एज इंग्लिश टीचर। उसमें थोड़ा सा इंग्लिश टीचर, यस। तो हम्म। ये अपॉर्चुनिटी है, फील्ड रिलेटेड जॉब लेना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि मार्केट काफ़ी competitive है यहाँ, फॉरनर्स काफ़ी ज़्यादा फॉरनर्स हैं यहाँ, तो हम्म। बहुत। हाँ जी, और टूरिस्ट कंट्री है ना मोस्टली, तो वो लोग जाते हैं, मैं जी, देखा है बहुत लोग, वेकेशन वगैरह के लिए, बड़ी फेमस है। ठीक हो जी। गया। और इन दी एंड आप हमें कोई कोई टिप्स बता दें, कोई चीज़ जो बंदा अप्लाई कर रहा है, कोई उसकी मोटिवेशन के लिए, या उसको कोई चीज़ें वार्न कर दें कि कोशिश रहे ये ऐसे नहीं करना ऐसे करना है। एनीथिंग यू वुड लाइक टू मेंशन, कोई टिप्स का सेक्शन रख ओके, लेते हैं। सो और ठीक आपका है, अपना तो एक्सपीरियंस पहली लाइक, टिप्स। आपका खुद रहे हैं, आप कितने साल हो गए आपको? आई थिंक 3-4 ईयर हो गए। 4 इयर्स मैं भी हाँ। ग्रेजुएट हुआ हूँ तो बिजनेस में। मतलब आपका अपना क्या आप फील करते हैं मेरा अच्छा डिसीजन था, और क्या क्या चीज़ें आप समझते हैं, अगर मैं आज कोई आ रहा है तो वो ये चीज़ें माइंड में रखे और इस तरह रियलिटी टॉक करते हैं थोड़ी। ठीक है, तो जब मैं आया था तो शुरू शुरू में काफ़ी 1-2 महीने, आपको पता है, होम सिकनेस होती है, तो मुझे उस वक्त तो बहुत रिग्रेट हो रहा था कि मैंने क्यों ये डिसीजन लिया। बट विद द टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि जिस तरह का एक्सपोजर मुझे यहाँ मिला है, अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं पर्सनल ग्रूमिंग के लिए। मैं जब पाकिस्तान से आया था तो मैं काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट था, लाइक
मेरे अंदर वो स्किल नहीं थे पब्लिक स्पीकिंग के, बट यहाँ आके मुझे वो अपॉर्चुनिटीज मिली। और डेफिनेटली आप जब इंटरनेशनल एनवायरनमेंट पढ़ते हो तो आपको थोड़ा सा मतलब जज एज कम्पेयर टू आप पाकिस्तान में पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा जज करने का होता है कि स्टूडेंट जज करेंगे, बट यहाँ आप ओपनली स्पीक कर सकते हो, तो ये मुझे एक प्लस पॉइंट नजर आया है। सेकंड, जो ड्रॉबैक है कि आपको पाकिस्तानी फूड अगर आप लाइक दूसरे फूड के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते हम्म। थाई खाने के ऊपर, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आपको फिर खुद बनाना पड़ेगा खाना, जो कि मोस्टली पाकिस्तानी स्टूडेंट बनाते हैं। आउटसाइड पाकिस्तानी खाने के अच्छे ऑप्शंस नहीं है, बट हम्म। मैं यूजली स्टूडेंट को रिकमेंड यही करता हूँ कि जब आप किसी कंट्री में जाएं तो वहाँ के लोकल अडॉप्ट करें, वहाँ के खाने खाएं, वहीं के हो लैंग्वेज जाएं। सीखें, वहीं के हो जाएं, बिल्कुल। जी जी। और सही सही। थर्ड, ये मैं बताना लाइक होम सिकनेस, यूजली जो सबसे बड़ा इशू होता है कि पाकिस्तान से जब स्टूडेंट आते हैं होम सिकनेस होती है, तो उसका मैंने जो मुझे लगता है कि अगर आप ना अपनी क्लासेस से स्टार्ट होने से 1-2 वीक पहले जाएं और जी भर के घूमें आपने आसपास सिटीज, तो फिर आपकी होम सिकनेस सही कम सही। होगी। यूजली मोस्टली स्टूडेंट्स जो करते हैं पाकिस्तान से आते हैं और रूम में आके बैठ के आते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा होम सिकनेस होती है। हम्म। बाकी ड्रॉबैक्स की बात जहां तक मैं करूं तो आपके फ्रेंड्स बहुत कम, सर्कल बहुत कम बनेगा, आप पाकिस्तान हम्म। जैसा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मस्जिद जैसे कोई कि है मुझे इधर? लग जी, मैं कहा मस्जिद भी कोई है इधर पास के? मुश्किल ही मस्जिद मिलती है। मस्जिद है हमारे पास, काफी बड़ी मस्जिद है। इवन यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा मुस्लिम क्लब है, अराउंड लाइक अच्छा फोर अच्छा, टू फाइव माशा। हंड्रेड पीपल हैं। हम्म। आपको रमजान में वो फ्री अफ्तारी देते हैं पूरे नाइस। मुस्लिम क्लब की तरफ से। हम्म। अच्छा और सॉरी, मैंने वो आपकी बात काट दी थी, आप वो कंटिन्यू करें। फ्रेंड्स थोड़े कम होते हैं सर्कल, वो मेरे एकदम ज़हन में मस्जिद का आया। मैं कहा पूछूं, जुम्मा वगैरह तो बंदा एटलीस्ट पढ़ ले इन अ वीक, चलो एक चक्कर लग हाँ जाए। नहीं, जुम्मन काफी बड़ी, आप लाइक आएंगे तो हमारे साथ एक और यूनिवर्सिटी है AIT में भी, अपने सोनो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहाँ आपको सिर्फ पाकिस्तानी देसी लोग ही मिलेंगे, तो आपको जब भी दिल हो तो आप 1 किलोमीटर है यहाँ से, आप वहाँ चले सही जाएं। से। वहाँ आपको ऐसा लगेगा कि आप पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में घूम रहे हैं। सही सही, माशाल्लाह। बाकी बाकी ये है कि थाईलैंड में जो मुझे सबसे बड़ा ड्रॉबैक मिला है कि नॉट इजी टू मेक फ्रेंड। बहुत मुश्किल होता है इन लोगों के साथ, लाइक बस रिजर्व रहते हैं, तो मेरे तो ज्यादा कोई फ्रेंड्स बने नहीं हैं। बस जब गया क्लासेस अटेंड की वापस गया रूम, तो कोई लाइक सोशल लाइफ ज्यादा रही नहीं है, सिर्फ अपने पाकिस्तानी फ्रेंड्स बने हैं। हम्म। सही सही सही। चलें जी, दैट इज इट। अब आई थिंक हमने बाकी ट्राई मैं की है। जी जी, गो अहेड। और बाकी वो मैं टिप्स देते चलूँ जी। अप्लाई करने के लिए कि आपको तो सबसे पहले जो पाकिस्तान से स्टूडेंट अप्लाई करें, हमें अक्सर बताया जाता है कि स्कोर्स नॉट इम्पोर्टेंट, या बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अभी बैचलर में है तो उनको बहुत से सीनियर मिलेंगे, बोलेंगे कि जीपीए डजेंट मैटर। आपने वो बात नहीं सुनी है, जीपीए मैटर अ लॉट। अपने जीपीए अच्छे करें। अगर आप स्कूल में हैं या यूनिवर्सिटी में हैं तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लें, अपने सर्टिफिकेट कलेक्ट करें, स्किल सेट सीखें, अपने ऊपर फोकस करें, अपनी लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करें, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करें, और ये चीज़ें आपको बड़ी काम आएंगी। बाकी अभी से अगर आपने मास्टर्स के लिए कहीं भी जाना है या अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो अभी से अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि इस टाइम में सारी स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट क्लोज होती है। अभी से सर्च करें और अपनी डॉक्यूमेंटेशन अभी से प्रिपेयर करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इवन एसओपी आपका नहीं बनता। मुझे एक एसओपी अच्छा बनाने में 1.5 साल लग गया। उस जमाने में चैट जीपीटी भी नहीं था। तो हम्म। आपको एक अवार्ड स्कॉलरशिप विनिंग एसओपी लिखने में काफी टाइम लगेगा, बट आजकल इजी है। आप वीडियोस देखें, यूट्यूब के ऊपर हजारों वीडियोस मौजूद हैं, वीडियोस देखें। आप इतनी स्कॉलरशिप अप्लाई करें जितना आप कर सकते हैं। लाइक मुझे लगता है कि आप इजीली 10 स्कॉलरशिप पर डे में अप्लाई कर सकते हैं। ऑन द पीक सीजन ड्यू इन अक्टूबर में, लाइक हजारों के हिसाब से स्कॉलरशिप आती है, हर कंट्रीज में आती हैं, हर यूनिवर्सिटीज में आती हैं, तो आप सही उनमें अप्लाई करें। सही है। यही मैं अब टिप्स। तुम्हें मैं बताऊंगा कि आइल्स की आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, टिप्स आई थिंक मुझे याद आ रहा है। तो वो आप क्या बता रहे अच्छा, थे उसके लिए, कोई अच्छा आइल्स में स्कोर करने के लिए? तो आइल्स बेसिकली हमारे लोगों को लगता है कि ये इंग्लिश के एग्जाम है, बट अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो इट्स मोर अबाउट पैटर्न। आपने पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चंस की टिप्स को अंडरस्टैंड करना है। तो इसका मैं स्टूडेंट्स को यूजली रिकमेंड ये करता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट अकेडमी जाते हैं, हालांकि इतना मुश्किल नहीं है। आप खुद जो आजकल तो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप खुद ऑनलाइन। प्रिपेयर कर सकते बिल्कुल। हैं। इनकी बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, आइल्स के हर साल के टेस्ट की बुक्स होती हैं, तो आप वो सब देख लें, हर वेबसाइट्स पे पड़ी है। आइल्स बुक फ्रॉम 1 to 20 आप कर लें डाउनलोड, टेस्ट की तैयारी करें। यूट्यूब के ऊपर कुछ लॉन्ग वीडियोस मौजूद हैं, आई थिंक 8 घंटे के कोर्स मौजूद है आइल्स के ऊपर, और उन्होंने ब्रीफली सारी टिप्स
बताई हुई हैं, तो वो आप फॉलो करें, खुद प्रिपरेशन करें। तो जब आपको पैटर्न अंडरस्टैंड कर लें कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो तब आप जाके एग्जाम देते हैं। सही बट सही। आपको आपका एटलीस्ट लाइक B2 लेवल होना चाहिए आपका कम्युनिकेशन में, तो तब आप देखें कि आप आइल्स के लिए फुली प्रिपेयर्ड हैं या नहीं। सही सही। चलें जी, एहसन भाई बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे से आपने माशाल्लाह शुरू से लेके एंड तक गाइड किया, एवरीथिंग को उस पे एक्सप्लेन भी किया है। तो होपफुली जो हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको जो है ना पसंद आएगी इंशाल्लाह वीडियो, और आप लोगों को किसी कंसल्टेंट वगैरह के पास जाने की जरूरत नहीं है एवं पैसे ज़ाया करने की। एहसन भाई की तरह ये एक दो महीना मेहनत करें, एवरी डे कुछ 5 to 10 स्कॉलरशिप्स अप्लाई करें। और आजकल तो एआई का दौर है, सेम चीज़ें आप फिर चैट जीपीटी को या किसी क्लाउड को, किसी और एआई को देंगे जी इसको थोड़ा सा इस तरह से कर दो, चेंजेस इसमें कर दो, कि अब मैंने इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है, इस सब्जेक्ट के लिए बी स्पेसिफिक उसको आप बता दो, जैसे आप किसी आम पर्सन को बताते हो कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप एआई को देंगे उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें वो आपको प्रिपेयर करके जो है ना रिजल्ट उतना अच्छा दे देगा। बाकी आई वुड रिकमेंड, इसमें मेरी एक टिप ये है कि एआई से अगर आपने कोई काम करवाना है ना, तो उसके लिए उसको कहें कि मुझे पहले प्रॉम्प्ट बना के दे, मैंने ये काम करना है, डायरेक्ट उसको रिजल्ट के लिए लगाएं, फिर उस प्रॉम्प्ट को रन करें, तो वो मैंने देखा है कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक वो ज़्यादा अच्छा। फॉर एग्जाम्पल आपने मोटिवेशन लेटर लिखना है, कोई भी चीज़ है, आप उसको यूज़ करके और बाद में उसको एक दफ़ा खुद रीड एक दो दफ़ा करें, और उसमें देखें कोई चीज़ आप अच्छी और कर सकती हैं, कोई मिस्टेक वगैरह हो, नोट खुद कर लें इससे पहले कि यूनिवर्सिटी आपको बताएगा इसमें ये मिस्टेक है। तो बार बहुत शुक्रिया एहसन भाई आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू। बाकी आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप लोगों ने एहसन भाई से भी रब्ता करना हो वो भी मैं आपका करवा दूंगा। तो बाकी मैं लिंक्स वगैरह सारे जो है ना उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।